So first, our topic is CPU properties. This is 4 mark question. In this, you'll have to write about the properties of CPU that will tell the performance of PC. Basically, your personal computer performance depends on CPU properties. What are those properties? First is the CPU speed, which we also call the clock frequency. Okay, the clock frequency basically tells the execution speed of your CPU. If your clock frequency is high, the CPU processing speed will be more. It is measured in Nowadays it is measured in gigahertz. Giga means 10 raised to the power 9 hertz. Hertz, you know, that cycle per second. Like in your AC supply, this is one cycle. Okay. So in your AC supply at home, you are getting 220 volt 50 hertz. So 50 hertz means this type of 50 cycles it will cover in 1 second. That is called 50 hertz. So when it is 10 raised to the power 9 hertz, so now you can imagine this is your clock pulses. Okay, in digital. So this is your first one clock pulse. This is your one clock pulse. So that type of pulse is 10 raised to the power 9 pulses in 1 second. That you can say the speed of your CPU. So how fast you can't imagine even. You have given your job and within a micro or fraction of second your job is done. That is the speed of CPU. So nowadays I3, I5, I7, we have, yes, in last class also we discussed about all the processor 8085, 8085, then we had 8086, 80286, 80386, 80486, 80586. This is also called Pentium. And then we have Porto Duo, then we have i3, i5, i7. Now these are all Intel based processor. We have AMD processor, HP processor, Motorola, Zilog. ये बहुत पुराने जो है सबसे ज़्यादा इंटेल के हम प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं. So 8085, as we have already discussed that this we will going to study in 12th standard. Our major portion is depend on this processor and its frequency is only 3 megahertz. And now i3, i5, i7 it is around 4.6 something 68 gigahertz. इस तरह से we have this frequency. Now you can see the drastic difference. 3 mega मतलब 10 raised to the power 6 hertz. और जो पेंटियम है उनका आता था अराउंड 500 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज. ओके, तो सीपीयू स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट बेसिकली टेल्स द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ सीपीयू. तो इट इज़ ऑपरेटेड विद क्लॉक. ये इस तरह से क्लॉक के साथ ये वर्क करता है. ठीक है. तो जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारा स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है. तो in one cycle you can have one instruction or more than one instruction you can complete in one clock period, or sometimes you need more than one clock period to complete one instruction. Depend the type of instruction, type of program you are doing. So it can be multiple instructions in one clock pulse, or it can be one instruction with many clock pulses. Okay. So second property आती है, that is your data bus width. Okay. So now what is data bus and what is bus basically? So bus basically, as you know, you are in your daily routine, you are using bus. What is the use of bus? To take the passenger from one place to another. So similarly here our passenger is data or information or address that you are transferring from one part of the computer to another part. So bus is nothing but group of wires or group of lines that carries information from one place to another. Okay, so we have different types of buses. We have data bus, we have address bus, we have control
line or control bus also you can say. Collectively this is called system bus. ओके, सो कोई भी कंप्यूटर में जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बसेस। तो अभी हमें ये एक साथ इस तरह से सिस्टम बस या इंटरनल बस करके ही आप डायग्राम्स में देखते हो। तो जैसे you know the basic diagram of a computer that we have a main brain of the computer is CPU. We have input devices, we have output devices like that, and in this CPU we have one control unit, we have one ALU, arithmetic logic unit, that perform all arithmetic and logical operation, and then we have main memory or primary memory, which is also called RAM, and then we have secondary memory also, हार्ड डिस्क वगैरह आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। So this is basic structure of your computer. So if you want to give something for processing, so it will transfer from input to first main memory, or from, if it is already there in the secondary memory, to main memory, and after that it will go for processing to arithmetic logic unit. After processing it will come back to main memory, or after that it will transfer to output device for display, or you can store again back to secondary memory. And what is the job of control unit? Control unit will control each and every part of the system so that they can work together, so that always synchronize with the time कि कब इनपुट को जाना है, कब प्रोसेस होना है, कब आउटपुट को जाना है, मीन्स इट प्रोवाइड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ये किससे हो रहा है? वाया ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बस। तो जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे अभी मुझे इनपुट से डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो CPU will generate address for that. CPU has the capability to have address of all the devices. See, हम जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, चाहे वो इनपुट हो या वो आउटपुट हो या फिर वो मेमोरी लोकेशंस हो, हर एक के यूनिक एड्रेसेस होते हैं। एवरी वन हैज़ इट्स यूनिक एड्रेसेस, करेक्ट। तो जब भी मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो CPU विल जनरेट द एड्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस, and it will go through, it will pass through address bus, and it will transfer to address decoder. Decoder will decode the address that okay, it is the address of input device. Then we have a chip select line that will activate this input device, and after that it will transfer the data on data bus. So it is just like a postal system कि आपका अगर लेटर डिलीवर करना है तो पोस्ट ऑफिस से इट विल स्टार्ट। तो पोस्ट ऑफिस में इट एड्रेस जो है बेस्ड ऑन एड्रेस इट इज़ डिकोडेड बाय पोस्टमैन कि ओके दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन, एंड देन आफ्टर रीचिंग टू दैट एड्रेस इट विल जस्ट एक्टिवेट दैट हाउस, उस हाउस का बेल रिंग करेगा, तो दैट इज़ जस्ट लाइक एक्टिवेटिंग दैट हाउस, and after that it will deliver the letter, और after that it will transfer the data. तो डेटा जो होता है वो 3 स्टेप में ट्रांसफ़र होता है। CPU पहले एड्रेस जनरेट करेगा, एड्रेस डिकोडर उसको डिकोड करेगा, एंड आफ्टर डिकोडिंग इट विल एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर डिवाइस, और इट कैन बी अ लोकेशन, एंड आफ्टर दैट इट विल ट्रांसफर द डेटा। ओके, सो डेटा बस का क्या काम है? इट कैरीज डेटा। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इट टेल्स द word size of the processor. Now what do you mean by word size of the processor? Word size means कि how many bits and can ALU process together. तो वर्ड साइज जो होता है वो डेटा बस पे डिपेंड करता है, जितनी बिट की डेटा बस होगी उतना ही ये डेटा ट्रांसफ़र होगा, और जितना डेटा ट्रांसफ़र होगा तो जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी कैसी रहती है? जस्ट लाइक योर पेज, ठीक है।
and every line is a location which has some unique addresses. Okay, तो यहाँ पर जितने बिट का आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो जब वो मेन मेमोरी में जा रहा है तो इट इज गोइंग टू स्टोर समवेयर, तो दैट लोकेशन शुड कंटेन दैट मैनी बिट स्टोरेज. And after that, when it will go for processing, so ALU has the capability to process that particular group of data simultaneously. तो वर्ड साइज मतलब कितना एक वर्ड का साइज एक साथ प्रोसेस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, डेटा बस पे. तो इट बेसिकली देयर इज द वर्ड प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ योर सिस्टम. तो जैसे अभी ये 8085 है, दिस इज 8 बिट प्रोसेसर, तो इसका जो डेटा बस होगा वो भी 8 बिट होगा. उसका मतलब हमारा जो डेटा बस है जो ट्रांसफ़र के लिए काम कर रहा है, दैट ट्रांसफ़र शुड बी ऑफ 8 बिट. उसके बाद स्टोरेज शुड बी ऑफ 8 बिट बिकॉज दैट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी शुड स्टोर 8 बिट साइमल्टेनियसली, एंड प्रोसेस शुड बी ऑफ 8 बिट. सो प्रोसेसिंग जो है वो डिपेंड करती है डेटा बस विड्थ पे. अभी कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द प्रोसेसिंग, हाउ मेनी बिट्स currently i3 i5 i7 is having? Can anybody tell? i3 i5 के कितने बिट के प्रोसेसर है? 8085 is 8 bit processor, 80286 and 8086 is 16 bit processor. मैम 64 बिट. Yes, correct. Who said? Correct, 64-bit processor. So it will process 64 bit simultaneously. तो अगर 8 बिट है तो उसका वर्ड जो डिफरेंट वर्ड के कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कितने बनेंगे? 256. और जब अगर ये 264 है तो यू कैन इमेजिन कि कितने प्रोसेसिंग, कितने डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस और वर्ड्स को ये प्रोसेस कर सकता है. तो इसीलिए इसकी जो कैपेबिलिटी है वो हर तरह के काम करने के लिए कैपेबल है. अंडरस्टूड? तो दैट इज द डिफरेंस. तो 2 raised to the power 8 इट्स बेसिकली टेलिंग द वर्ड साइज. और थर्ड जो है इट इज बाई डायरेक्शनल. So sometimes this question is there in your exam, write the difference between data bus and address bus. 12th में आता है ये question based on 8085. So that time also we will discuss, but these are general terms जो कि common है सब buses में, and this is bi-directional. Bidirectional means that you can see that here the data is flowing from input to main memory. So this is always one way. Why one way? Because you cannot give data to keyboard. You can always take the data from keyboard. Okay. But here you can say it is two way. Main memory से data गया और process होके वापस आया. ऐसे ही रिजल्ट के टाइम जब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो एग्जिस्टिंग डेटा भी ले सकते हैं और न्यू डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. बट इन आउटपुट डिवाइस इट इज वन वे ओनली फ्रॉम मेन मेमोरी टू आउटपुट. वी कैन सी फ्रॉम मॉनिटर, वी कैन नॉट टाइप विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर. ओके, तो समवेयर इट इज वन डायरेक्शन, समवेयर इट इज टू डायरेक्शन. तो हम इसको कंसिडर करते हैं दैट दिस इज बाई डायरेक्शनल बस. ओके, तो डेटा बस क्या काम करता है? कैरीज डेटा. जो थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोसेसर की वो है एड्रेस बस. तो एड्रेस बस क्या बताता है? एड्रेस बस सिंपली इट कैरीज एड्रेस. सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये एड्रेस कैरी करता है और इट इज़ यूनी डायरेक्शनल. वाई यूनी डायरेक्शनल? बिकॉज इट इज़ always generated by CPU and transferred to all the peripherals. It is not two way, क्योंकि CPU ही एड्रेस जनरेट करेगा, डिकोडर को देगा और डिकोडर विल एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर डिवाइस. तो इट इज़ नॉट टू वे कि भाई पेरिफेरल एड्रेस जनरेट कर रहे हैं. तो इसलिए ये बस होती है यूनी डायरेक्शनल. और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, इट टेल्स the memory capacity of processor. It tells the memory capacity of processor. मेमोरी कैपेसिटी बताता है. मेमोरी कैपेसिटी कैसे बताता है? अभी मैंने बताया था कि जो हमारी मेमोरी होती है इट इज़ नथिंग लाइक योर रजिस्टर पेजेस.
or each line of your register page is just like a memory location. So this is one location, and every location has its own unique addresses. और ये एड्रेसेस जो हैं दैट डिपेंड्स ऑन एड्रेस बस. तो जितना बिट का एड्रेस बस होगा उतने ही यूनिक नंबर हम जनरेट कर सकते हैं. जैसे सिंपल ले लेते हैं, अगर एड्रेस बस 4 बिट है तो 2 रेज टू द पावर 4 16 कॉम्बिनेशन ना, 0 to 15 तक आपने टेबल भी बनाई है. 0 to 15 तक आप एड्रेसेस जनरेट कर सकते हो. अगर 2 रेज टू द पावर 5 है तो 32 एड्रेसेस 0 to 31 यू कैन जनरेट. तो जितने आपकी एड्रेस बस होगी उतने ही यूनिक एड्रेसेस आपके पास होंगे. चाहे तो वो सारे एड्रेसेस मेमोरी को दे दो, कुछ एड्रेसेस हमें इनपुट और आउटपुट को भी देने पड़ेंगे. तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स. पहले हमारे पास टेक्निक होती थी कि जो एड्रेसेस इनपुट आउटपुट को दिए हैं दैट वी कैन नॉट गिव टू मेमोरी. But nowadays we have option कि same address I can use for peripheral as well as for memory location. And from 8085 that started. उससे पहले के प्रोसेसर में अगर ये फर्स्ट और सेकेंड एड्रेस इन कीबोर्ड का है, ये प्रिंटर का है, तो ये एड्रेस मेमोरी को नहीं दे सकते थे. मेमोरी का एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होता था. But after 8085 processor, or in that processor we have that scheme to separate that we can use common addresses for keyboard as well as, मतलब 1 or 2 I can use for memory as well as for keyboard. तो हमें एक वहाँ पे एक स्पेशल पिन यूज होती है IOM बार, दैट वी विल डू लेटर ऑन इन 12th स्टैंडर्ड. दैट सेपरेट की बट दैट टेल्स कि ये एड्रेस जो है एड्रेस बस पे है वो पेरिफेरल का है, मतलब कीबोर्ड का है या मेमोरी लोकेशन है. ओके, इनपुट आउटपुट का है या मेमोरी लोकेशन का. तो अभी जो हम 12th में करेंगे दैट इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर. उसका जो एड्रेस बस है दैट इज 16 बिट. 16 बिट मतलब कितना हो गया, 2 रेज टू द पावर 16 मीन्स 65536 मीन्स 02655535. 65,536 लोकेशन वी कैन हैव. अगर इसको और इजी वे में लिखेंगे तो 2 रेज टू द पावर 16 कितना होता है, 2 रेज पावर 6 एंड 2 रेज टू द पावर 10. 2 रेज टू द पावर 6 कितना होता है 64, और 2 रेज टू द पावर 10 इज 1024, जिसको आप 1 KB बोलते हो, किलो बाइट. तो क्या हो गया फिर 64 KB. So this memory, that many location, or this is the memory capacity of microprocessor 8085, जो कि वो एक्सेस कर सकता है रियल मेमोरी या रैम जो आप बोलते हो. तो 64 KB मेमोरी जो है इट कैन बी एक्सेस्ड बाय 8085 माइक्रो प्रोसेसर. तो इसमें रैम रोम दोनों ही होते हैं, रैम का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, रोम का भी करते हैं. तो टोटल जो कैपेसिटी है दैट इज 64 KB. अंडरस्टूड, क्लियर है ये. तो दैट टेल्स द मेमोरी कैपेसिटी. तो ये 10th में ही है. फिर हमारा इसका आगे फर्दर भी है, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स हैं हम डेसिमल में नहीं, हमें ये हेक्सा में यूज़ करने हैं, हेक्सा डेसिमल में. तो दैट एड्रेसिंग स्कीम एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड. बट जस्ट फॉर नॉलेज, तो एड्रेस बस कितना अभी, जैसे नाउ डेज इट इज़ 32 बिट एड्रेस बस है, तो 2 रेज टू द पावर 32 मीन्स 4 GB का actual memory you can use in your system. ओके, तो उसके बाद हमारा ये प्रॉपर्टी हो गया CPU स्पीड से हमें स्पीड पता चलती है, डेटा बस से उसकी प्रोसेसिंग पावर पता चलती है, एड्रेस बस से उसकी मेमोरी कैपेसिटी वी कैन टेल. और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसमें दैट इज सीरियल पोर्ट. ओके, तो serial port is basically available, it should be available in your system. The serial port nowadays we have all USB ports, universal serial port. तो serial port पहले बहुत होता था, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं अभी भी यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा करके अभी USB पोर्ट्स ही यूज़ होते हैं.
तो सीरियल पोर्ट्स मॉनिटर्स हम उस पर लगाते थे। पैरेलल पोर्ट होते हैं जहाँ पे वी कैन कनेक्ट प्रिंटर। तो इन सीरियल और पैरेलल में डिफरेंस क्या है? इन सीरियल कम्युनिकेशन डेटा विल ट्रांसफर बिट बाय बिट। जैसे अभी मैंने बोला 8085 8 बिट प्रोसेसर है, तो 8 बिट विल नॉट गो साइमल्टेनियसली, बिट बाय बिट इट विल गो। बट इन पैरेलल कम्युनिकेशन ऑल बिट्स विल गो टुगेदर। तो सीरियल पोर्ट जो है उसमें जितने भी पुराने पेरिफेरल्स हैं वो सब सीरियल मोड में ही काम करते हैं, तो सीरियली उसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये तो बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं अभी। Now you can add one more in this, that core. How many cores are there in your CPU? तो जैसे पहले तो एक ही कोर आता था, फिर कोर टू ड्यू जैसे ड्यूअल कोर आने लगे, एंड i3 4 कोर्स 8 कोर्स, इस तरह से जो कि एक साथ कितने वर्क आप एक साथ कर सकते हो। कोर का मतलब वो होता है हाउ मेनी वर्क यू कैन परफॉर्म टुगेदर। So this is your question from book only. What are the different CPU properties? This is 4 mark question. So that you have to prepare for your exam.